Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good afternoon to one and all present here. I would like to extend a warm welcome to our esteemed chairman, Mr. Asifuddin Sahib, our honorable secretary, Mr. Muhammad Farhan Salahuddin Sahib. I extend a particular warm welcome to our honorable chief guest, Mr. Shamim Akhtar, retired education officer, Indian Air Force Wing Commander. Dear students, kindly give a round hand of applause. I would also like to extend my warm welcome to all the delegates who are sitting on the dais and my dear students. We are extremely fortunate to have such a talented and passionate personality sitting among us, who is one of the outstanding alumni who has set the standards of exemplary accomplishments. His professional and philanthropic endeavors attest to the upbringing and the values he lives by. We want to thank you for responding positively to our invitation. We all are fortunate enough to be a part of Wisdom family. Our beloved chairman, Mr. Asifuddin Sahib, is a person of values and ethics. His humbleness and down-to-earth nature creates an impression in everybody's heart. To the students, Mr. Asifuddin Sahib always inspires students and motivate them to reach their greatest potentials. Mr. Salahuddin Farhan Sahib is a strong pillar of Wisdom group of institution who is contributing most of his time and dedication for the development of school students in every field. Please students, put your round hand of applause for your chairman and secretary. Without wasting much of our time, it's time to welcome our beloved chief guest, Muhammad Shamim Akhtar. फौजी भी कमाल के होते हैं, फौजी भी कमाल के होते हैं, जेब के छोटे बटुए में परिवार और दिल में सारा हिंदुस्तान रखते हैं। इस कदर वाकिफ हो जाता है मेरा कलम, इस कदर वाकिफ हो जाता है मेरा कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। आसान नहीं होता इंडियन एयरफोर्स में होना, दोस्तों आसान नहीं होता इंडियन एयरफोर्स में होना, दूसरों की सलामती के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है। Let me introduce briefly about our today's chief guest. Mr. Shamim Akhtar is a wing commander who was commissioned in the Indian Air Force on 15 December 2006. Has profound experience in administration, event management, training and development, school administration and human resource management. He has trained number of students in interview skills, psychology and group testing to successfully become officers in Army, Navy and Indian Air Force. Coach students and adults in various life skills, personality development, soft skills, emotional intelligence, and mentored them to attain success and happiness. Multi-talented personality with passion for reading, fitness, and as well as social activities. Took premature retirement from IAF at the age of 44 to pursue his passion and help students and youth to harness their full potential. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की इस अहम और बामकसद गैदरिंग के चीफ गेस्ट मिस्टर शमीम अख्तर इंडियन एयरफोर्स के रिंग कमांडर रहे। अभी लास्ट जुलाई में उन्होंने वीआरएस ले लिया। आपसे मिलने के लिए वीआरएस लिया ताकि पूरे मुल्क में घूम फिर कर नौजवानों को बताएं कि आपकी मंजिलें कितनी ऊंची होनी चाहिए। आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है, दिल ही नहीं जिंदा ज़मीर है। आदमी का अगर ज़मीर मर जाए तो आदमी बेहया हो जाता है और अगर कुछ भी हो तो बस ऐसा साफ कर लेता है, कोई भी थूके तो फिर चले जाता है। इसको कहते हैं बेहया आदमी। लेकिन जब ज़मीर जिंदा होता है तो आदमी की नींद हराम हो जाती है। आदमी अपनी डिग्निटी के लिए जीता है, अपने देश और अपनी कौम की डिग्निटी के लिए जीता है।
अपनी फैमिली की डिग्निटी और इज्जत के लिए जीता है, खाने के लिए नहीं जीता। खाने के लिए बेहया लोग जीते। इसीलिए कहा जाता है कि 1000 साल की गीदड़ की जिंदगी से एक दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। तो इसी तरह शमीम अख्तर साहब ने देखा कि मैं इंडियन एयरफोर्स में एक अट्रैक्टिव और हैंडसम सैलरी लेकर 16 साल तक ये वहाँ पर रहे और उन्होंने देखा कि क्या हाल है आने वाली जनरेशन का। मेरे एक के अच्छे रहने, इंजॉय करने से क्या होगा? मैं खुद गरज नहीं बन सकता, मैं सबके लिए फ़ायदामंद बनूं। इसके लिए उन्होंने लास्ट जुलाई में रिज़ाइन किया और शहर शहर जाकर आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए नौजवानों, आपका मुस्तकबिल कैसे रोशन हो सकता है, जिससे कौम और मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हम देखना चाहते हैं। तो ये मंजिल कैसे अचीव हो, वो मैं अगर हज़ारों बच्चों को बता दूं, सैकड़ों बच्चे अगर रिंग कमांडर बन जाएं, एयरफोर्स में आ जाएं, फौज में आ जाएं, नेवी में आ जाएं, तो फिर हमारा मुल्क भी एक शक्तिमान देश बन जाएगा, हमारी कौम भी एक बाविखार कौम बन जाएगी। ये है वो अजीम मकसद जिसके लिए आप यहाँ हाजिर हुए हैं। विजडम इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, आप सब की जानिब से मैं आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। मैं अपना यहाँ पर वक्त लिए बगैर, क्योंकि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कभी भी मैं आपके सामने आकर गुफ्तगू कर सकता हूँ। ये मौका नहीं है, वक्त कम है। मैं फुरकान पाशा साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, ये DDPI ऑफिस में ऑफिसर हैं, और डॉक्टर गुलसीन सर सीनियर डाइट लेक्चरर, अभी कहीं पोस्टिंग हुई है, सीनियर ऑफिसर हैं, PhD हैं आप भी। हमारे मदार सर प्रिंसिपल साहब को भी मैं सलाम करता हूँ, हमारे मैडम को भी मैं सल्यूट करता हूँ। फिर हमारे यंगेस्ट सेक्रेटरी का भी मैं वेलकम करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। फुरकान पाशा साहब आपके मुताल्लिक़ मज़ीद तारुफ़ कराएंगे, उसके बाद आपकी गुफ्तगू होगी और उसके बाद आपको इंटरेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Esteemed dignitaries on and off the dais, I will not repeat their names again. Half of the introduction has already been given. Madam and Asifuddin sir has informed you many things about शमीम अख्तर सर। ये इत्तेफाक था, हम लोग 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कर्नाटका से एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। शमीम अख्तर साहब एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोग वहाँ 3 महीने साथ थे। वो बेसिकली कोलकाता से हैं, बीन एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। वहाँ हमारी मुलाकात हुई, 3 महीने ट्रेनिंग हम एक साथ करे। 1997 में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया। उनकी टोटल सर्विस 25 साल 9 महीने 10 दिन रही है। पिछले 31 जुलाई को उन्होंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। इस दरमियान में इनके बहुत से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं। 2 कोर्ट वो मास्टर्स करे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उसके साथ साथ MBA भी हैं वो। उसके बाद अलग अलग पोस्टिंग्स रही है उनकी। फ़्लाइट कमांडर मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई में 2007 से 2010 तक पोस्टेड रहे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल चंडीगढ़ में 2010 से 2012 तक ये पोस्टेड रहे। इलाहाबाद एयरफोर्स स्कूल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे 2012 से लेकर 2013 तक। वाइस प्रिंसिपल एंड ऑफिसर कमांडिंग NCC सैनिक स्कूल तिलैया झारखंड में ये 2013 से लेकर 2016 तक अपने सर्विसेज दिए। देन ही वर्कड एज इंस्ट्रक्टर एंड स्क्वाड्रन काउंसलर नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, यहाँ में 2016 से लेकर 2017 तक इन्होंने अपने सर्विसेज दिए। स्टाफ ऑफिसर त्रिवेंद्रम में 2017 से लेकर 2018 तक। फिर उसके बाद स्टाफ ऑफिसर न्यू दिल्ली में 2018 से 2020 तक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल दिल्ली, यहाँ 2020 से 2021 तक। फिर उसके बाद ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ऑफिसर एंड इंस्ट्रक्टर इन चेन्नई, वहाँ 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक, 31 जुलाई 2022 तक इन्होंने सर्विसेज दिया है। अलग अलग कैडर्स में 25 साल के सर्विस में शायद 10 अलग अलग पोस्ट में काम करने का उनको मौका मिला। आपको ताज्जुब होगा और सुनकर ये हैरत भी होगी, ऐसे एक पोजीशन में जहां और उनकी 17 साल सर्विस बाकी थी, 13 साल सर्विस बाकी थी। यूजुअली इंडियन एयरफोर्स में रिटायरमेंट का एज 57 ईयर्स होता है, तो 13 ईयर्स की अभी सर्विस बाकी थी। ऐसे पीक पर जहां ज़िंदगी के पूरे कंफर्ट्स को वो एंजॉय कर सकते थे,
He could have been on the highest positions. और यहाँ की इंडिया की पर मंथ 2,50,000 ड्रॉ करते थे. सैलरी के अलावा बहुत से अलावेंसेस मिलते हैं, वो उसके बारे में जिक्र करेंगे क्या क्या और फैसिलिटीज़ में. वो सारे फैसिलिटीज़ को और 2.5 लाख पर मंथ सैलरी को तर्क करके एक अजीम मकसद के साथ उन्होंने देखा. बहुत से बार बता रहे थे जहाँ जहाँ पोस्टिंग करते वो देखते कि कितने ऐसे बच्चे कम्युनिटी के जो इसमें नाम हैं, तो उनको देखकर ताज्जुब होता कि इनसे पहले कोई और ऐसा नाम नहीं मिल सकता जिससे वो ख्याल कर सकेंगे और कोई इस कम्युनिटी का बच्चा यहाँ आया है. बाई एंड लार्ज एक बहुत बड़ा मकसद लेकर वो चाहते हैं ऐसे मासेस हमारे आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन हो, उनको एक सही रुख मिले, उनको इसके बारे में मालूमात हासिल हो. फिर उसके साथ साथ अचीवमेंट के, यानी आप हर फील्ड में दी बेस्ट कैसा हो सकते हैं, हाउ यू कैन बी दी बेस्ट इन एनी फील्ड दैट यू वर्क, ऐसा एक ख्याल लेकर वो अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए हैं, अपने सर्विसेज को तर्क किया है. कोलकाता से यहाँ तक एक लंबा सफ़र तय कर आए हैं. 25 दिसंबर को हमारे यहाँ आए. आज आपके स्कूल में 6th प्रोग्राम है. बीदर डिस्ट्रिक्ट की ये खुशनसीबी है, हमारे एक छोटे से इन्विटेशन पे उन्होंने यस किया. हम ख्वाहिश करते हैं कि यहाँ से जब जाएं विजडम की अच्छी यादें वो लेकर जाएं. वो आपको यहाँ ज़मीन से लेकर आसमान तक उड़ाने की फ़िक्र लेकर आए हैं. वो चाहते हैं आप यहाँ से नहीं वहाँ रहने के काबिल हैं, आप आइए, वहाँ आपके लिए क्या क्या मौके हैं. ऐसे अजीम उनका ख्याल है, ऐसी सोच लेकर आए हैं. आपके ख्यालात का, आपके इंटरेक्शन के साथ यहाँ जो बातें आएंगी, पूरे बहनें और भाई यहाँ जो बातें लेंगे वो इस पूरे मुल्क भर में आपके चर्चे यहाँ पर होंगे. हम चाहते हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, आप जितने ये इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं आपको अल्लाह गैर मामूली सलाहियतों का माहिल आपको करे और अल्लाह ताला आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाए. हम चाहते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे भी उनसे मुस्तफ़ीद हों. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. I request our beloved chairman to please proceed with the felicitation to our beloved guest. उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती हैं उनको मंजिलें आसमानों में. मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मिस्टर शमीम अख्तर साहब को इजहार ख्याल के लिए दावत देता हूँ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. First of all, I thank from the bottom of my heart the chairman and secretary of Wisdom Institutes for extending this invitation and for this warm welcome as well. Thank you, sir. First of all, we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala who has made it possible for all of us for meeting in this session. And I also thank फुरकान पाशा साहब because of his initiative और उनके पहल के वजह से ये मुमकिन हुआ है कि मैं यहाँ आप लोगों के सामने रूबरू हूँ. और फुरकान पाशा साहब एक ऐसे ऑफिसर हैं जो संडे के दिन भी सर्विस का काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और उन्होंने 3 दिनों की छुट्टी ली है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है सो दैट हम अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जा सकें और ये जो सेशंस हैं ये कामयाब हो सकें. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और आप इसका फ़ायदा उठाएं. आई होप दैट. आपने सुना होगा कि माइकल हार्ट एक इंग्लिश ऑथर थे. माइकल हार्ट क्रिश्चियन ऑथर थे और उन्होंने 100 अजीम शख्सियतों के बारे में लिखा, 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज. उसमें नंबर 1 पोजीशन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को दिया. उन्होंने रीजंस दिया कि व्हाई ही हैज केप्ट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑन द फर्स्ट पोजीशन. एंड द रीजंस गिवन वर कि वो एक रिलीजियस लीडर थे, वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, और इसके साथ साथ वो एक फैमिली मैन भी थे एंड वो एक मिलिट्री कमांडर भी थे. तो जब उन पे मक्का से फौज आई और जंग मुसल्लत की गई तो दिफा के लिए, अपने लोगों के दिफा के लिए, औरतों और बच्चों के डिफेंस के लिए उन्होंने फौज को लीड किया. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं महाभारत से. अर्जुन एक बहुत बड़ा जंगजू था, अ ग्रेट वॉरियर. मैदान जंग में उसको ये शुबा हो गया कि मैं अपने भाइयों के साथ कैसे लड़ूं.
उसके जो उस्ताद थे द्रोणाचार्य, वो भी दूसरे तरफ से लड़ रहे थे, तो मैं अपने उस्ताद के ऊपर हथियार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग करी वहीं मैदान जंग में कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है, इट इज अ राइटियस वॉर, और हथियार उठाना पड़ेगा। तो जब ऐसे अजीम शख्सियतों ने ज़रूरत पड़ने पे इंसाफ की लड़ाई के लिए हथियार उठाया, अपने मुल्क के दिफा के लिए हथियार उठाया और जंगें की, तो मेरा आप सबसे ये सवाल है कि आप नौजवान भाई और बहन अपने मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस से क्यों दूर हैं? Why are you not coming forward and joining the Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy? This is my question to all of you. ये सवाल अपने दिल में बैठाइए। और अगर इसके बारे में एक रीज़न ये है कि आपको मालूमात नहीं है, तो इंशाल्लाह इट विल बी माई एंडेवर ड्यूरिंग दिस सेशन टू अप्राइज यू कि क्या है, कैसे है और कैसे ज्वाइन करना है। और अगर कुछ शक व शुबा है तो इन दी एंड देयर विल बी अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप खुल के सवाल पूछिए और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो आर्म्ड फोर्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। रोल क्या है? क्या सिर्फ वो जंग लड़ते हैं और कुछ नहीं करते? जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, जलजला आता है, सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर हैं पुलिस फोर्स रिस्पॉन्ड करती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द हैं, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। 24/7 थाने में कोई ना कोई रहता है, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि इतनी बड़ी आपदा में उसको कंट्रोल कर सकें। तो देन कौन आता है? द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS वगैरह, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं। लेकिन उनसे भी कुछ होता है इतने बड़े आपदा में और बड़े बड़े अर्थक्वेक्स और सुनामीज में। फिर पैरामिलिट्री को बुलाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन होते हैं? CISF, CRPF। लेकिन अगर बहुत बड़ा सुनामी जैसा कोई चीज़ हो, जलजला आए, तो आर्म्ड फोर्सेस को बुलाना ही पड़ता है। एंड जब ये आर्म्ड फोर्सेस आते हैं तो क्या होता है? सब ठीक हो जाता है। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, चाहे वो जंग हो या नेचुरल कैलामिटी हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने मुल्क की सेवा में 24/7 लगे रहते हैं, चाहे जंग हो या अमन का वक्त हो। दैट इज द इंपॉर्टेंस। अब आप पूछेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफर क्या करते हैं, क्यों, इसके अलावा और क्या है, क्यों ज्वाइन करूं मैं? तो आप प्राइड और रेस्पेक्ट के लिए ज्वाइन करिए। आप एक क्लास 1 कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे, गैजेटेड ऑफिसर नहीं। आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर को गैजेटेड ऑफिसर्स नहीं कहते हैं जैसे कि सिविल में कहते हैं दूसरी जगह, उनको कहते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। और ये कमीशन कौन देता है उनको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट मिलती है उनके दस्तखत के साथ कि यू आर कमीशन्ड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस एज सो एंड सो। और जब आप किसी को बताते हैं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, एयरफोर्स ऑफिसर हूँ, नेवी ऑफिसर हूँ, तो तुरंत वो आपको एक दूसरे पायदान पे रख देता है। आज आप मुझ इसलिए सुन रहे हैं और अच्छे से सुन रहे हैं, शायद आपने वो सारे आपको बताया गया बैकग्राउंड, तो प्राइड एंड रिस्पेक्ट के लिए। और जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और रैंक लगाते हैं अपने कंधों पे, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मुल्क की, दैट इज अनमैच्ड। आपके माँ बाप, आपके घर वाले, एक ऑफिसर यहाँ से बन जाए, पूरी जो ये कम्युनिटी है, पूरा जो ये सराउंडिंग है, सब गैल्वेनाइज हो जाएंगे। और क्या मिलता है प्राइड और रिस्पेक्ट के अलावा? अच्छी सर्विस, रिस्पेक्ट, उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। अगर आप स्पोर्ट्स लवर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे एडवेंचर आपको बहुत पसंद है, आर्म्ड फोर्सेस इज द प्लेस टू बी। किसी और सर्विस में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप जाइए जाके फुटबॉल खेलिए या क्रिकेट खेलिए, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करिए। आर्म्ड फोर्सेस ही ये फैसिलिटी देते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, शायद नाम सुना हो, 2004 एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेकर आए अपने मुल्क के लिए शूटिंग में। शूटिंग लेफ्टिनेंट कर्नल बने, रिटायर हुए और आज मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। राज्यवर्धन सिंह राठौर। स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे एक एयरफोर्स की ऑफिसर हैं और उसके साथ साथ वो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की मेंबर भी हैं। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के तरफ से खेलती हैं, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। पैसा नहीं कटता कि ओलंपिक में भी खेलने गए हो तो खेल कूद के पैसे नहीं मिलेंगे, सैलरी कट, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा एक अजीम करियर, एक ब्राइट फ्यूचर, एक हसीन मुस्तकबिल
आर्म्ड फोर्सेस आपको देते हैं। द बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज आर्म्ड फोर्सेस में आपको मिलता है। अब आप बोलें कि भाई करियर है, करियर की बात कर रहे हैं तो पैसे की भी बात करिए, कितना मिलता है सर? तो जब आप ट्रेनिंग में होते हैं, ट्रेनिंग के दौरान आप कहलाते हैं कैडेट, कैडेट सो एंड सो, कैडेट शमीम अख्तर। तो एक कैडेट को जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं तो आपको मिलता है 56,100 रुपीज पर मंथ। इसको कहते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और आप कमीशन्ड ऑफिसर्स बनते हैं, उसके बाद आपकी जो सैलरी है, अगर आप एयरफोर्स में हैं तो आप फ्लाइंग ऑफिसर कहलाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर शमीम अख्तर। आर्मी में हैं तो लेफ्टिनेंट कहलाएंगे, लेफ्टिनेंट शमीम अख्तर। नेवी में हैं तो सब लेफ्टिनेंट कहलाएंगे, सब लेफ्टिनेंट शमीम अख्तर। तब आपकी सैलरी ओनली पे 60,000 to 80,000 के दरमियान कुछ होगी, दैट इज द स्टार्टिंग पे। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे अलावेंसेस भी मिलते हैं, और उन अलावेंसेस को जब आपकी पे से जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंचता है। अच्छा, ये इतना ही नहीं है, पे के साथ पर्क्स भी होते हैं। पर्क्स क्या हैं? आप ऑफिसर बन गए तो रहने के लिए अकोमोडेशन, फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्निश्ड घर, माँ बाप को भी लेके जाइए। बहनें बैठी हुई हैं, बहुत जगह ये सवाल आया कि माएँ बहुत फिक्र करती हैं कि कैसे रहोगी, क्या रहोगी। साथ में लेके जाइए उन्हें, घर भी मिला हुआ है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, बड़ी से बड़ी बीमारी का अच्छे से अच्छा इलाज, लोन की फैसिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस की फैसिलिटी, छुट्टी, घर आना है, कहाँ कहाँ मैं इतनी जगह रहा हूँ तो घर तो जाना पड़ेगा ना साल में मिलने के लिए। ईद बकरीद में कितनी छुट्टी? 80 दिन। साल में 80 डेज की छुट्टी, 80 दिन पेड, पेमेंट के साथ। तो दीज आर सम ऑफ द पे एंड पर्क्स एंड फैसिलिटीज दैट द आर्म्ड फोर्सेस प्रोवाइड यू। अब आप पूछेंगे कि सर एंट्री कैसे होता है? वेरियस एंट्रीज आर देयर। फर्स्ट एंट्री इज क्लास 12 के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ है नेशनल डिफेंस एकेडमी? पुणे में। वेरी नाइस, लोगों को पता है। तो +2 में अच्छे मार्क्स लाइए, मिनिमम 50%, एंड देन नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम दीजिए, रिटन एग्जाम जाइए। उसके बाद एक SSB का प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ग्रेजुएट हो गए तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है। आर्ट्स और साइंस सबके लिए खुला हुआ है, LLB वालों के लिए भी खुला हुआ है, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी खुला हुआ है, डॉक्टर लोगों के लिए भी खुला हुआ है। आप ये सब करने के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसके थ्रू मैं गया था। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं आप। ये सारे एंट्रीज हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पावरपॉइंट स्लाइड नहीं चल पाया, अदरवाइज मैं थोड़े डिटेल में बात कर लेता, बट इट्स स्टिल ओके। आजकल इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बहुत सारा ये सब। ओनली व्हाट इज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज गाइडेंस। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, गूगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। सो गाइडेंस कम्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट। तो ये सारी एग्जाम्स हैं, और आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं। अब तो एयरफोर्स में यहाँ आप देखते हैं ना, जहाज़ उड़ते हैं, वो पायलट्स उड़ा रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्लाइंग ब्रांच। 3 तरह के पायलट्स होते हैं, एक जो फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, एक ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाते हैं, वो बड़े बड़े प्लेन जो लोगों को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरे हेलीकॉप्टर पायलट्स, हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले। उसके अलावा इंजीनियर्स होते हैं जिसको टेक्निकल ऑफिसर्स कहते हैं, तो आप इंजीनियरिंग के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, ठीक है, एजुकेशन ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, ये सारे लोग होते हैं। तो आप कुछ भी करें, कोई भी डिग्री करें, उसके बाद आपके पास स्कोप है ज्वाइन करने का। क्यों स्कोप है, क्यों ज्वाइन करना है, वो भी मैंने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आता है कि भाई रिटन एग्जाम के बाद, अच्छा 12th के बाद एक और एंट्री है जिसको कहते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। अगर 12th में PUC में 70% मिनिमम है तो यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं कि 70% वालों को आमतौर पे कॉल लेटर मिलता नहीं है, एंड वो डायरेक्ट इंटरव्यू में है, रिटन एग्जाम भी नहीं है, और आप फिर फौज के खर्चे पे इंजीनियरिंग कराते हैं। तो अगर 80% एंड अबव है तो आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, आप जाएंगे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, एंड देन अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको आर्म्ड फोर्सेस अपने खर्चे पे इंजीनियरिंग कराएगी और आप फिर ऑफिसर भी बनेंगे। एक NCC स्पेशल एंट्री स्कीम है। अगर कोई बच्चा NCC करता है और उसने C सर्टिफिकेट ले लिया है तो उनके लिए स्पेशल एंट्री, नो रिटन एग्जाम, डायरेक्ट इंटरव्यू। तो ये 2 चीज़ें भी मैं बताना चाहता था। नाउ
रिटन एग्जाम तक तो ठीक है, यहाँ तक तो और भी किसी प्रोफेशनल करियर में ऐसा ही होता है, बट रिटन एग्जाम के बाद एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, SSB। और ये SSB एक बड़ा ही नायाब तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है। SSB में क्या होता है कि जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, और ऑफिसर बनने के लिए SSB देना ज़रूरी है, पास करना ज़रूरी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए SSB देना ज़रूरी है। SSB के अलग अलग सेंटर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कॉल लेटर मिलेगा कि आप फलाने जगह पे आइए, फलाने डेट पे आप रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ बस आएगी और आपको SSB सेंटर में लेकर जाएगी। यहाँ से जो नियरेस्ट SSB सेंटर्स है वो बेंगलोर है, मैसूरू है, यहाँ पे SSB सेंटर्स हैं। लेकिन आपको कहीं भी भेज सकते हैं, इलाहाबाद भी भेज सकते हैं, गुवाहाटी भी दे सकते हैं, गांधीनगर भी दे सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँचे, पहले दिन रिपोर्टिंग होगी, फिर बहुत सारे फॉर्म्स भरेंगे और उसके बाद जो है फ़ेज़ 1 की टेस्टिंग शुरू होगी। तो वहाँ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दो तरह की टेस्टिंग होती है। फ़ेज़ 1 में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 2 पेपर, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के 2 पेपर होते हैं। जब आप वो हो जाएगा उसके बाद दूसरा टेस्ट शुरू होता है जिसको कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाउ इन दिस टेस्ट आपको एक पिक्चर दिखाते हैं, फ्लैश करते हैं स्क्रीन पे, और वो 30 सेकेंड्स तक आपको दिखाते हैं, और 30 सेकेंड्स के बाद वो पिक्चर गायब हो जाएगा, और फिर 4 मिनट आपको मिलेगा उसके ऊपर एक स्टोरी लिखने के लिए। अब आप ये मत समझिएगा कि ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि जब आपने ये पिक्चर देखा तो आपके दिमाग में किस तरह के ख्यालात आए, what kind of thoughts were triggered in your mind when you saw that picture, and how keenly you have observed that picture for 30 seconds। कितने कीनली आपने उसको पिक्चर को ऑब्जर्व किया है और उसके एक एक चीज को याद रखा है सिर्फ 30 सेकंड, क्योंकि वो सारे चीजें जो उस पिक्चर में आपको दिखी उसके हर एक पहलू को अगर आप टच करेंगे अपने स्टोरी पे तो आपकी स्टोरी एक अच्छी स्टोरी होगी। इसके बाद जब आपने स्टोरी लिख ली, 500 कैंडिडेट मान लीजिए गए हुए हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हुए मान लीजिए सब वहाँ गए हुए हैं, और आप लोगों ने स्टोरी लिख ली, उसके बाद आप सबको एक ग्रुप में बांट देंगे, 15-15 के ग्रुप में, और आपको एक सेमी सर्कल फैशन में इस तरह से बिठा देंगे चेयर्स पे, और सेमी सर्कल में जो 15 लोग बैठे हैं आपके सामने 3 असेसर्स बैठेंगे, एक होंगे साइकोलॉजिस्ट, एक होंगे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, और एक होंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ऐसे ही सामने बैठेंगे आपके। और अब आप अपने स्टोरी को नरेट करेंगे। यू विल नरेट द स्टोरी दैट यू हैव रिटन। एवरी कैंडिडेट वन बाय वन विल डू दिस, एंड द मोमेंट द 15th कैंडिडेट फिनिशेस नरेटिंग द स्टोरी, उसके ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन होगा। देयर विल बी अ ग्रुप डिस्कशन, एंड ग्रुप डिस्कशन का आपको ब्रीफ किया जाएगा कि एट द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू यूनानिमसली अग्री टू अ कॉमन स्टोरी। ग्रुप को अब अपना अलग अलग स्टोरी छोड़ के एक अंडरस्टैंडिंग पे आना है और एक कॉमन स्टोरी तक पहुंचना है। ये मकसद है उस ग्रुप डिस्कशन का। पहुंचे या नहीं पहुंचे उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा ग्रुप डिस्कशन। और इस टेस्ट के बाद ये जो इतने सारे लोग गए हैं SSB सेंटर पे टेस्ट देने फ़ेज़ 1, इसमें से तकरीबन 60 to 70% लोग बस में बिठा के वापस रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिए जाएंगे। ठीक, तो 60 to 70% वापस पहुंच जाएंगे विजडम। अब जो बच गए 30 to 40% उनकी फ़ेज़ 2 टेस्टिंग शुरू होगी। फ़ेज़ 2 टेस्टिंग का मतलब अब आप 4 दिन वहाँ और रुकेंगे, और अब आप जो पूरे 5 दिन वहाँ रुकेंगे, पहले दिन और 4 दिन और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप कैंडिडेट हैं लेकिन आपको ट्रीट ऑफिसर जैसा किया जाएगा वहाँ पे। तो अपने आप में एक नायाब एक्सपीरियंस तजुर्बा है, और पूरे मुल्क से अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे और आप उनके साथ कॉम्पीट करेंगे 5 दिनों तक। तो एक अलग तजुर्बा है, एक अलग सा निखार आएगा आपके अंदर जब आप वहाँ से आएंगे। वेदर पास करें नहीं करें दैट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। तो फ़ेज़ 2 में आप चले गए, और फ़ेज़ 2 में पहला जो टेस्ट होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। उसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला जो टेस्ट है उसको कहते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में उसी तरह से फिर से पिक्चर दिखाते हैं और उसके ऊपर स्टोरी लिखना होता है। 11 पिक्चर दिखाएंगे एक एक करके, 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर, 4 मिनट स्टोरी। 12वां पिक्चर नहीं दिखाएंगे, ब्लैंक स्क्रीन होगा। आपके मन में जो भी आता है आप वो स्टोरी लिख दीजिए। अगेन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन नहीं है। कोई बहुत अच्छा लेखक, अ वेरी गुड ऑथर, वो पास कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। अगर कोई बच्चा इस टेस्ट में अच्छा नहीं करता तो साइकोलॉजिस्ट अपना वक्त ज़ाया किए बगैर
बाकी उसने क्या किया है अगले 2-3 टेस्टों में उस पर वक्त ज़ाया नहीं करता, चेक ही नहीं करता, टाइम नहीं है, इतने कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है उसको कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक एक वर्ड आपको फ्लैश किए जाएंगे स्क्रीन पे, 15 सेकंड तक वो वर्ड, वो अल्फाज स्क्रीन पे फ्लैश्ड रहेगा, सिर्फ 15 सेकंड्स। कैसे वर्ड्स होंगे? फादर, मदर, टीचर, पिकनिक, फिल्म, इंडिया, क्रिकेट, आसान, बिल्कुल आसान वर्ड्स। मर्डर, क्रिमिनल, इस तरह के भी वर्ड्स हो सकते हैं और होंगे। तो 15 सेकंड में आपको वर्ड को देखना है, समझना है, सोचना है और फटाफट एक सेंटेंस लिखना है, छोटा सा सेंटेंस। अगर आपने एक सेंटेंस लिखना है जो आपने लिखा और वो वर्ड जो फ्लैश हुआ था आपने उसका इस्तेमाल नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ये देखना चाहता है या चाहती हैं कि वो वर्ड देख के आपके दिमाग में कौन से ख्यालात आए, क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो माइंड के लेवल्स है ना, माइंड का हमारा लेवल है, उसमें एक सबकॉन्शियस लेवल होता है, उसमें हम वो चीज़ दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं जो हम औरों को नहीं बताना चाहते हैं। वैसे तो हम सब बदमाश होते हैं लेकिन हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और जो सारी बदमाशी है ना वो सबकॉन्शियस लेवल में दबी हुई रहती है, रिप्रेस्ड रहती है। साइकोलॉजिस्ट ये दोनों टेस्ट से वो जो छुपी हुई चीज़ें हैं ना उसको निकाल लेता है बाहर, एक्सरे कर देता है वो आपके दिमाग का। इसके बाद जो अगला टेस्ट है उसको कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको एक बुकलेट दिया जाता है जिसमें 60 सवाल होते हैं, 60 क्वेश्चंस, और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए 30 सेकंड्स, मतलब 30 मिनट के लिए वो बुकलेट आपको दिया जाता है और तुरंत 30 मिनट के बाद वो वापस ले लेंगे। कैसे सवाल होंगे? सिंपल क्वेश्चंस। आप ट्रेन में जा रहे थे, आप टॉयलेट गए, वापस आए तो आपने देखा आपका सामान गायब हो गया, आप क्या करेंगे? आपको स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया, टीम ने बगावत कर दिया कि हम इसको कैप्टन नहीं मानेंगे, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, आप क्या करेंगे? तो एक एक प्रॉब्लम है, इन दोनों सवालों में एक एक प्रॉब्लम है, सिंपल। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल के लिए निकले और आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है और रास्ते में आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया है और वो आपको मदद के लिए पुकार रहा है, तो आप क्या करेंगे? अब इसमें 2 प्रॉब्लम है, बोर्ड एग्जाम भी देना है, मदद भी करना है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स उन क्वेश्चंस में होंगी उस सबको एड्रेस करना है आपको अपने जवाब में। ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, अलग अलग सिचुएशन में आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स। एंड फाइनल एक टेस्ट होता है साइकोलॉजी का जिसको कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन। कैसे सवाल पूछते हैं उसमें पता है? जो मैं सवाल बताऊंगा अगर कोई पहुंचा तो यही सेम सवाल आएगा। मतलब नीट में ऐसा नहीं होता, आईआईटी में ऐसा नहीं होता कि आपको एक दिन पहले या 1 महीने पहले क्वेश्चन पेपर दे दे कि यही आने वाला है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं यही आएगा, और इसके बावजूद लड़के और लड़कियां जाकर फेल हो जाते हैं। पहला सवाल होगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, क्या सोचते हैं? आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोचते हैं? व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू योर टीचर्स थिंक अबाउट यू, व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं? एंड 5वां सवाल, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी खूबियां क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं? प्रॉब्लम ये है ना क्यों फेल हो जाते हैं? इतना सिंपल सवाल भी पता है, क्योंकि पूरी जिंदगी निकाल दी और अंदर नहीं देखा, सिर्फ दूसरों को ही देखा है। अभी मैं पूछूंगा इनसे ये कैसा है, बोलेंगे सर क्या बताऊं मैं, बिल्कुल गया गुजरा है। मैं पूछूंगा कुछ अपने बारे में बताइए तो सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी निकाल दी दूसरों की खामियां ढूंढने में और खुद अंदर झांका ही नहीं कि मैं कौन हूं, क्या मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, क्या मेरे अंदर भी कुछ खूबियां हैं, क्या उसने अपनी खूबियों पे काम किया उसको और निखारने के लिए, क्या उसने अपनी कमजोरियों पे काम किया कि उसको हटाई जाए अपनी शख्सियत से, अपने पर्सनालिटी से? इसलिए लोग फेल हो जाते हैं। आम बीमारी है ये सबसे कॉमन बीमारी है। इसके साथ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो जाती है, खत्म। नेक्स्ट टेस्ट होता है ग्रुप टेस्टिंग, जिसके लिए आपको आउटडोर ले जाते हैं, बाहर वहाँ एक ग्रुप डिस्कशन होगा। सबसे पहले 2 टॉपिक देंगे, 2 टॉपिक पे 15 लोगों का ग्रुप होगा, 15 से 20 लोगों का ग्रुप, जो 30-40% इसमें से बचेंगे वो 20-20 के ग्रुप में होंगे। लड़कियों का अलग एग्ज़ाम होता है और लड़कों का अलग, मिक्सिंग अप नहीं होती। ग्रुप डिस्कशन,
तो जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि इंग्लिश में होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, those children, those candidates, they generally perform well. लेक्चरेट होता है, 3 टॉपिक दिए जाएंगे और एक सेलेक्ट करना है और 4 मिनट के लिए यहाँ खड़े होके सबके सामने बोलना है उस टॉपिक के ऊपर। तो अगर कभी स्टेज पे नहीं चढ़े हैं तो पैर कांपने लगेगा, पैर को कंट्रोल कर लिया तो ज़ुबान लड़खड़ाने लगेगी, और कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर ऐसा होता है। उसके बाद एक मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, एक मॉडल दिखाएंगे बड़ा सा, उस मॉडल में पहाड़ होंगे, झरने होंगे, नदियाँ होंगी, पुलिस होगा, स्कूल होगा, मंदिर मस्जिद होंगे, सब बता देंगे आपको कि कहाँ पे क्या है, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे। आप अपने घर से निकले हैदराबाद जाने के लिए, और जैसे थोड़ी आप 10 किलोमीटर पे पहुँचे तो एक औरत दौड़ती हुई आई और बोली, मेरा भैंस खो गया है, मेरी मदद करिए। जब उसने ये बोल के ख़त्म किया तब तक एक लड़का भागा भागा आया और उसने आपसे बोला कि मैंने देखा है कि कुछ टेररिस्ट, दहशतगर्द रेलवे की पटरी पे बॉम्ब लगा रहे हैं, रेलवे की पटरी को उड़ाना चाहते हैं बॉम्ब से। ऐसे ही 4-5 प्रॉब्लम और बता देंगे आपको, कम से कम 6 से 7 प्रॉब्लम्स आपको बता दिए जाएंगे। अब आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है कि आप किस प्रॉब्लम को किस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आप कैसे सॉल्व करेंगे और किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। जब आप सब लिख लेंगे उसके बाद इसके ऊपर होगा एक ग्रुप डिस्कशन, और आप डिफेंड करेंगे अपने सॉल्यूशन को कि मैंने इसको पहले 1 प्रायोरिटी क्यों दिया और मैंने इसको पहले क्यों सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, इसके ऊपर एक डिस्कशन होगा। इसके साथ मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज ख़त्म होगी। फिर बाहर जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है और बीच में पाँव नहीं रख सकते ज़मीन पे, तो कुछ बने रहेंगे, जैसे इस तरह का कुछ ऊंचा ऐसे होगा स्ट्रक्चर, और उसको क्रॉस करने के लिए आपको एक लकड़ी का फट्टा दे देंगे, एक बैम्बू दे देंगे, रस्सी दे देंगे, और पूरे के पूरे ग्रुप को एक साथ जाना है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें ये चेक कर रहे हैं कि आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, उसमें ये चेक कर रहे हैं कि आप लीडरशिप क्वालिटी उभर के आती है कि नहीं, लोग आपकी बात सुनते हैं कि नहीं, आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं या नहीं, आप अपने आइडियाज को कन्वे कर पाते हैं या नहीं। फिर उसी ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वैसा ही एक और टास्क दे देते हैं, उसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। अगर इस दोनों टास्क में आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो एक और मौका दे दिया जाता है। पूरे ग्रुप को एक फिर से वैसा ही टास्क रिपीट कराते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। अगर आप आर्मी के लिए गए हैं तो एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, उसको स्नेक रेस बोलते हैं। अगर एयरफोर्स और नेवी के लिए गए हैं तो स्नेक रेस नहीं होता है। इसके साथ ग्रुप टेस्टिंग हो जाती है, खत्म। अब बचता है इंटरव्यू। तो आप एक रूम में जाते हैं, वह इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंतजार कर रहा होता है और आपको शर्ट और ट्राउजर पहन के जाना है। अगर कोई लड़की कैंडिडेट है, गर्ल कैंडिडेट है, तो सलवार कमीज में जाना है, मतलब फॉर्मल ड्रेस में जाना है। और 40 मिनट्स टू 1 आवर का एक इंटरव्यू होता है। द इंटरव्यू लास्ट फ्रॉम 40 मिनट्स टू 1 आवर, एंड मैं आपको 70% क्वेश्चंस बता सकता हूँ। अगर मैं आपकी एसएसबी की ट्रेनिंग करूँ तो 70% क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे वो मैं बता सकता हूँ, और इसके बावजूद लड़के जाके फेल होके आते हैं। ठीक, ये जो इतना डायनामिक प्रोसेस है ये बहुत ही साइंटिफिकली रिसर्च्ड, और बहुत सारी दुनिया के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो इस मेथड को फॉलो करती हैं। इसी मेथड को थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इसी मेथड को अपनाया जाता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए। तो एक अलग तरह का टेस्टिंग है, शायद पहली बार सुना होगा, है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। इसके बाद फेज 2 हो जाता है ख़त्म, और क्या होता है कि अब तक जो है जो तीनों असेसर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, वो अकेले अकेले आपको देखते आए हैं। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट ने तो आपको देखा भी नहीं है, और बिना देखे ही उसने आपने जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो सब लिखा है, स्टोरी, वर्ड, सेंटेंसेस और सिचुएशन, रिएक्शन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, उसके बेसिस पे उसने ऑलरेडी ये तय कर दिया है कि आप पास हैं या फेल हैं, सिर्फ एक्सरे देख के। तो एक कॉन्फ्रेंस होता है फाइनल डे में, जब इस तरह से सारे असेसर्स अब एक साथ बैठेंगे और एक एक करके एक एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और अब वो लोग उसको डिस्कस करेंगे कि अलग अलग असेसर्स ने उसके अंदर क्या पाया और उसको रखना है या नहीं रखना है। और वो जब सारा कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है, जब लास्ट कैंडिडेट बाहर जाता है तो उसके थोड़ी देर के बाद रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो जो 30-40% बचे हैं उसमें से 10 या 5 या 1 भी नहीं सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं कि 500 का बैच गया और 0 सिलेक्शन, 10
15 लोग का सिलेक्शन, ऐसा भी होता है। तो बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। गाइडेंस की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो इंशाल्लाह लोग कामयाब होते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अभी कोई मुझसे पूछे कि सर अभी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब आमतौर पे ना ये एसएसबी की ट्रेनिंग लोग 12-14 दिनों की कैप्सूल में कराते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता कि 12 दिन में किसी की पर्सनालिटी कैसे बदली जा सकती है। तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, रीड, पढ़िए, क्या, न्यूज़पेपर्स, अच्छी किताबें, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल कि वो बड़े हुए तो क्यों हुए, रीड। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। जब आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से पर्सनालिटी में निखार आता है। तो पढ़ने के अलावा ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इतना डायनामिक प्रोसेस है तो उसमें चेक क्या करते हैं, क्या चेक करते हैं वहाँ पे? तो चूंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रिसर्च करके बनाए गए हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज चेक करते हैं कि आपके अंदर हैं या नहीं है, और अगर कम मात्रा में है तो फिर उसको ट्रेनिंग के दौरान और बढ़ाया जाएगा। तो ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या हैं? इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अलावा सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि फौज में सिर्फ एक इंस्टीट्यूट के यहाँ से बच्चे निकल के वहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, मुल्क के कोने कोने से अलग अलग जगह से लोग आएंगे और वहाँ काम करेंगे। उनके ख्यालात मुख्तलिफ होंगे, खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना अलग होगा, लेकिन आपके अंदर ये अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा तरीका है, ये उसका तरीका है, वो अपनी जगह ठीक है और मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अडेप्टेबिलिटी, तो सोशल अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। बिना कोऑपरेशन के कोई काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ फिल्मों में होता है कि सनी देओल पाकिस्तान जाता है, अकेले वहाँ हैंडपंप उखाड़ता है, पाकिस्तानी आर्मी को अकेले शिकस्त देता है और फिर वापस चला आता है। ये सिर्फ फिल्मों में होता है। असलियत में पूरी आर्मी जाती है, फाइट्स एज अ टीम। तो टीम में कोऑपरेशन ज़रूरी है। उसके अलावा इनिशिएटिव, जो कैसा आदमी है, क्या खुद पहल करता है काम करने के लिए, या बैठा रहता है छुप के, कोई बोलेगा तो काम करूंगा और नहीं बोलेगा तो बच के निकल जाऊंगा। इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारी क्वालिटीज़ हैं। लाइवलीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइवलीनेस, एक इंसान जो लाइवली है, चीयरफुल है, वो क्या है कि बड़े से बड़े परेशानी के वक्त में भी वो उससे गुजर जाएगा हंसते खेलते। कोई सवाल? कोई सवाल है? आपस में मत पूछिए, वो मैं आया हूँ बतलाने के लिए। अगर आपस में सबको मालूम ही है और आपस में बात करके हल हो जाएगा, सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक। और उसके बाद क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन, कुछ कर गुजरने की चाहत, डिटर्मिनेशन, जुनून कि ये मैं अचीव करूँगा ही, करूँगी ही। करेज, करेज तो चाहिए, लेकिन करेज सिर्फ लड़ने वाला करेज नहीं, मॉरल करेज, सही को सही और गलत को गलत बोलने का की हिम्मत, मॉरल करेज भी चाहिए। और स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना। फिजिकल स्टैमिना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्टैमिना। फिजिकल स्टैमिना तो ट्रेनिंग में डेवलप कर देंगे, मेंटल स्टैमिना अगर नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है कि मैं रात भर पढ़ सकूं, मेहनत कर सकूं, रोज़ 15-16 घंटे काम कर सकूं, मेंटल स्टैमिना नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जिनको वहाँ पे चेक किया जाता है और इसको कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस में इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ वैसे हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी करियर को चुनेंगे तो इंशाल्लाह आप उसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर बने तो डॉक्टर ज्वाइन किए हॉस्पिटल में और डॉक्टर ही रिटायर किए, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने, या उस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन भी बने, अगर ये क्वालिटीज़ हैं तो वहाँ तक पहुँचेंगे। आप इंजीनियर बने तो इंजीनियर ही रिटायर हो गए, ये CEO भी बने, गूगल के CEO बने या नहीं। अगर IAS ऑफिसर बने तो वो किसी लोअर रैंक में रिटायर हो गए, या आप कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने। ये वो क्वालिटीज से वो चीज़ें, ये दीज क्वालिटीज़ विल हेल्प यू इंशाल्लाह, ठीक। तो इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द टॉक। और इसके अलावा आपके पास अगर कोई सवाल हैं तो आई एम रेडी टू टेक ऑन दोज क्वेश्चंस। इससे पहले मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे जो हमारी बहनें थी वो ज़्यादा सवाल पूछती थी,
और जो भाई थे वो खामोश रहते थे, बट जब वो बहनों ने सवाल पूछा तब उनके अंदर भी जोश आ गया, फिर वो भी पूछने लगे। तो पूछिए अगर कोई सवाल है तो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, कोई स्कैरी एक्सपीरियंस जहाँ मैं डर गया? बड़ा मुश्किल सा सवाल है, जहाँ मैं डर गया। तो डरा तो मैं कभी भी नहीं। ट्रेनिंग पीरियड की मैं एक बात बता दूं। ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सरसाइज होता है जिसको कहते हैं ट्रेजर हंट। तो ट्रेजर हंट, हम उसको ढूंढ रहे हैं, राइट? तो उसके लिए बैकपैक लेना पड़ता है। 10 किलो का पीछे वेट होता है बैग में, 10 किलो, और हाथ में राइफल होता है। तो जब शुरू करते हैं तो बहुत हल्का लगता है 10 किलो, वो 5 किलो के आसपास, 5.5 किलो के आसपास राइफल, और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे से तीसरा पॉइंट, ऐसे एक जीपीएस देते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सुना है? तो उसमें कोऑर्डिनेट्स फीड करते हैं और आप ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के, जैसे आज गूगल दिखाता है ना यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, तो जीपीएस वो जीपीएस बेस्ड ही है। तो आप उसके ज़रिए अलग अलग पॉइंट पे पहुँचते रहते हैं और फाइनल आपको ट्रेजर तक पहुँचना है। तो दौड़ते रहते हैं, और उसमें क्या टोटल टीम वर्क है, क्योंकि आपकी पूरी टीम आपके साथ दौड़ रही है। कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे रनर हैं, और वो लास्ट में जो लोग दौड़ रहे हैं उनको भी साथ में लेके जाना है। तो उनका राइफल भी, जो थोड़े से स्ट्रांग लोग हैं उनका राइफल ले लेना पड़ता है, ताकि राइफल, बिना राइफल के दौड़ो। तो फाइनली जब हमने वो रन कंप्लीट किया, वो एक्सरसाइज, तो हम जो है 32 किलोमीटर्स दौड़ चुके थे, 32 किलोमीटर्स, ठीक है? तो ये इनिशियली पता नहीं लगता। आप जो जानते हैं अपने बारे में, आपको लगता है कि ये मेरा पोटेंशियल ये है। आपका जो पोटेंशियल है उससे कहीं ज़्यादा है। आपका पोटेंशियल जो है उससे कहीं ज़्यादा है। आप अपने आप को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर यकीन नहीं करते। ओके, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बोलने वाला था कि बहनों की तरफ से सवाल नहीं आ रहे हैं, तो एक सवाल आया है। क्वेश्चन है, फॉर एवरी सक्सेस देयर इज फेलियर। व्हाट वाज द फेलियर इन योर लाइफ एंड व्हाट मोटिवेटेड यू? ओह माय गॉड, दिस इज ब्रिलियंट क्वेश्चन, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है। तो मैं ये बता दूं कि फॉर एवरी सक्सेस इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर हैज टू बी अ फेलियर। इट इज़ नॉट नेसेसरी, पहली बात। दूसरी बात कि मैं ऑफिसर सेकेंड अटेम्प्ट में बना, पहली अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो सेकेंड अटेम्प्ट में बना, तो दैट वाज द फेलियर। तो जब फेलियर हुआ, नहीं बन पाए, तो फिर हताश और निराश नहीं हुए। इनफैक्ट तुरंत आते ही मैंने वो लिखा कि मैंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो गई। एसएसबी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा सिस्टम मैंने समझाया था, वहाँ 5 दिन रुक के आया और नहीं हुआ। तो मैंने आते ही तुरंत, मतलब ट्रेन में बैठते ही मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मैंने क्या क्या किया है, ताकि मुझे याद रहे। और फिर वापस आने के बाद फिर से तैयारी करी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हो गया। तो दैट वाज द फेलियर। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर सक्सेस के लिए फेलियर हो। ओके, तो एक छोटा बच्चा हुआ करता था, और उसके फादर ने ना उसकी एडमिशन कराई एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल में। बहुत पहली बार वो बच्चा जो है स्कूल गया, उसने देखा वहाँ बड़े बड़े कार से भी लोग उतर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतना बड़ा कैंपस। और जो प्रिंसिपल थे वो इंग्लैंड से थे, इंग्लैंड। उनका नाम था ब्रदर माइकल रॉबर्ट बेडो। और वो आए और मॉर्निंग असेंबली में उन्होंने पूरे जितने बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, सबको उन्होंने इंग्लिश में एड्रेस किया। कुछ बच्चों को समझ में आ रहा था। अब ये जो छोटा बच्चा है, पहले दिन स्कूल गया, इतने बड़े स्कूल में पहले दिन दाखिला हुआ है क्लास 1 में, उसके समझ में कुछ नहीं आया। अंग्रेज़ी का एक अल्फाज उसके समझ में नहीं आया। लास्ट में प्रिंसिपल ने एक वर्ड बोला, वो उसके समझ में आया। प्रिंसिपल ने बोला सुअर, और कुछ बच्चों ने बोला यस सर। तो बच्चा शाम को घर आया और फिर अपने वालिद को बोला कि अब्बा ऐसा ऐसा हुआ आज स्कूल में, और फिर प्रिंसिपल ने सुअर बोला और बच्चों ने यस सर बोला, तो इसका क्या मतलब है? अब वालिद साहब बेचारे क्या बताते, वो तो वहाँ पे थे नहीं। तो कई साल गुजर गए, और कई साल गुजरने के बाद उस छोटे से बच्चे को ये समझ में आया कि प्रिंसिपल ने सुअर नहीं बोला था, प्रिंसिपल ने तो बोला था श्योर श्योर। और जिन बच्चों को समझ में आया उन्होंने यस सर बोला। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, श्योर, यस सर, कुछ ऐसा बोला होगा। तो वो छोटा बच्चा जिसको वो इतनी अंग्रेजी की समझ और अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो छोटा बच्चा आज जब आपके सामने खड़े होकर ऐसे बात कर सकता है, तो फिर
तो फिर आप सब जो चाहें वो बन सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबकी जानिब से मोहतरम शमीम अख्तर साहब के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वो बातें बताई जिनको हम याद रखकर आइंदा हम एक बहुत बड़ी शख्सियत बन सकते हैं। तो शमीम अख्तर साहब इंडियन एयरफोर्स के समंदर से निकलकर यहाँ आए हैं ताकि आप भी उस समंदर का हिस्सा बने। हम इंडियन एयरफोर्स से बहुत करीब हैं। कैसे करीब हैं? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर बीदर में है और ये इतना ओल्डेस्ट है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 से जो 1944 तक हुआ उसमें ये बना है। आखिरी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए मेरे इन हरदिल अजीज सितारों और तारों जिनकी आंखें चमक रही हैं, जिनके चेहरे दमक रहे गए, यू वुड बी द नेक्स्ट शमीम अख्तर। बिल्कुल आप हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आप उस डगर पर सोचने लगें, उस डगर पर आप प्लान करें, उस ट्रैक पर आप अपने आप को डालें। फुरकान सर के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें शमीम अख्तर साहब का तारुफ कराया, उनसे इस्तिफादे का मौका दिया। डॉक्टर गुलसीन सर भी बहुत बातें बता सकते हैं, हमें फिर कभी मौका मिला तो हम सुनेंगे। और ही इज़ ए अलोन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आउट ऑफ द इंटायर द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो इंशाअल्लाह हमारे पास भी बहुत से हीरे हैं और आपको चमकाने के लिए और आपके अंदर चमकने के लिए बहुत कुछ सलाहियत है। आपके लिए हम सब कुछ करने तैयार हैं। शर्त यह है कि आप सिंसियरली इस एज में आप अपना टेस्ट कराएं, क्या बनना चाहते हैं, काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। मैनेजमेंट पर एतमाद और कॉन्फिडेंस रखें, इंशाअल्लाह हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वन एंड ऑल।